Good morning. Welcome back to yet another lecture of body fluids and circulation. So in the last class we only discussed a few topics with respect to what is hematopoiesis, what is hematopoietic organ, what is hemolytic organ. So we discussed all those topics. Now in this particular class we will be talking about, as you can see, we will be talking about blood grouping. But before we start up with blood grouping, there is a small topic which is to be left, that is blood corpuscles. एंड ब्लड कॉर्पसल्स में डिटेल में करने नहीं वाला हूं बिकॉज हमने ऑलरेडी ये चैप्टर ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा हुआ है. सो अपार्ट फ्रॉम ब्लड कॉर्पसल्स वी आल्सो हैव टू स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा. ठीक है, हमको मैंने आपको पिछले क्लास में प्लाज्मा क्या है, सीरम क्या है, वो सब पिछले चैप्टर में बताया हुआ है बेटा, है ना. सो यू विल हैव टू रिवाइज इट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्शन. अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट वी आर क्विकली रिवाइजिंग इज प्लाज्मा. प्लाज्मा में क्या क्या है, प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन्स है और प्लाज्मा में वाटर है. द फ्लूइड मैट्रिक्स इज वाटर मेजरली. ठीक है, और प्रोटीन्स में देयर आर थ्री प्रिंसिपल प्रोटीन्स व्हिच वी स्पोक अबाउट. द फर्स्ट वन इज एल्ब्यूमिन, द सेकंड वन इज ग्लोब्यूलिन एंड द थर्ड वन इज फाइब्रिनोजन. आपके नोट्स में अगर फाइब्रिनोजन नहीं लिखा हुआ है तो उसको इंक्लूड कर लो, क्योंकि वो मेरे को लगा था कि पिछले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है. फाइब्रिनोजन इज द फैक्टर नंबर 1 इफ यू नो दिस. ठीक है, आपको कॉम्पोजिशन के हिसाब से, आपको परसेंटेज हिसाब से सब कुछ लिखवाया है इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर. ठीक है, सो नॉट wasting any more time with respect to functions of albumin, we have only small topic which is left in globulin. ठीक है, the second type of protein which is globular in structure, globulin में we have three types of globulin: alpha globulin, beta globulin and your gamma globulins. So alpha globulins में examples क्या आएंगे बेटा, क्या आएंगे examples alpha globulin में? Ceruloplasmin, which is a copper transporter molecule. Similarly beta globulin में example क्या आएंगे? Transferrin, which is an iron transporter molecule. And the third one is gamma globulin, which is also referred to as immunoglobulins. ठीक है, now we have to talk about immunoglobulins in a gist, in a small section we'll have to understand. ठीक है, अब ये खत्म करते हैं, then we'll take up blood grouping. Okay, so when you talk about immunoglobulins, now why are they called as immunoglobulins? Because they are associated with immunoglobulins बोलो या immunoglobins बोलो, it is absolutely one and the same. ठीक है, so why are they called as immunoglobulin? Because they are associated with their immunity. ठीक है, मैंने आपको एक supplementary video भेजा था जिसमें you could see certain Y-shaped protein molecules. These Y-shaped protein molecules will bind to certain foreign क्या बोलते हैं surface proteins. Now these foreign surface proteins are called as antigen. ठीक है, ये दो वर्ड आपको याद करना है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी. तो इम्यूनोग्लोबुलिन इज आल्सो रेफर्ड टू एज एंटीबॉडी. ठीक है, these are those molecules, these are those protein molecules which are produced by your body against a foreign body. ठीक है, so it is produced by your body and it is anti to a antigen. So antigen and antibody, ये दो वर्ड्स आपको याद करना है. एंटीजन को हम डिनोट करेंगे Ag से और एंटीबॉडी को हम डिनोट करेंगे Ab से. Now why I told you that this is very important because इसी के बेसिस पे हमको ब्लड ग्रुपिंग आगे पढ़ना है. ठीक है बेटा, all right. So now talking about immunoglobulins. Now specifically when you talk about immunoglobulins, there are 5 different types of immunoglobulins, namely IgM, IgA, IgG, IgD, IgE. So आप याद रखोगे MAGD. ठीक है, अब इसको ऑर्डर में ही याद रखेंगे हम. अब मैं देखो डायग्राम जो आपको नोट्स में बनाया हुआ है, दैट इज एन एक्चुअल डायग्राम व्हिच इज बीन टेकन फ्रॉम एमबीबीएस बुक. ठीक है, सो अभी के लिए जो बोर्ड पे मैं बना रहा हूं, दैट इज अ प्रीटी इजियर डायग्राम फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर. ठीक है, so now when you talk about immunoglobulins, कौन बना रहा है immunoglobulins? These are the only proteins which are not produced by the liver cells. These are produced by the B plasma cells. ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी बात किया था. बी प्लाज्मा सेल और बी
लिम्फोसाइट में फर्क क्या है? बी लिम्फोसाइट अगर पिकाचू है तो बी प्लाज्मा सेल राइचू है, मतलब इट इज उसका मॉडिफाइड फॉर्म है, राइट? तो बोलने का मतलब ये है कि इफ बी प्लाज्मा सेल forms from a B lymphocyte, what is the major difference between them? If B lymphocyte is producing 2 antibodies per second, B plasma cell has the potential to produce 2000, so that is the difference, 2000 per second. So that is the major difference between the B lymphocyte and B plasma cells. So all of these antibodies, the immunoglobulins, are produced by B plasma cells. ठीक है? Now when you talk about types of immunoglobulins, all the functions of immunoglobulins, ये पहले हम लोग 2 मिनट में फंक्शन लिख लेंगे, ठीक है? So primarily when you talk about the function, every antibody is specific to an antigen, ठीक है? अब जब तुम्हारे बॉडी में एक नया एंटीजन एनकाउंटर होता है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अप कोविड, ठीक है? कोविड-19 जो वायरस है दैट हैज बीन एनकाउंटर्ड बाय योर बॉडी एंड इट इज अ न्यू वायरस, ऑल टुगेदर नोवेल वायरस। क्यों हम इसको नोवेल वायरस बोलते हैं? इससे पहले भी कोरोना वायरसेस थे, इससे पहले भी देयर वर एपिडेमिक्स, देयर वाज नॉट पैंडेमिक विद रिस्पेक्ट टू कोविड और विद रिस्पेक्ट टू कोरोना वायरस, but there were surely definitely there were epidemics. There was MERS, Middle East Respiratory Syndrome. There is SARS, SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. So इससे पहले भी कोरोना वायरस आकर अटैक करके गया है, ठीक है? But now this one COVID-19, why do we call it as a new altogether novel coronavirus? Because it has certain it has certain new type of surface proteins, ठीक है? New type of surface proteins. It is just like a lock and key. I told you. This is your key and that is your lock. ठीक है? That is the antigen is your lock and this is your key. So it has to properly fix. ठीक है? Every particular आपका ताला चेंज नहीं होता है, बट आपका की चेंज होता है हमेशा, ठीक है? आप एक घर को फॉर एग्जांपल अगर आप एक घर इमेजिन कर लो कि आपके पास कोकिला बेन की चाबी की गुच्छा है, चाबी का गुच्छा है ना, एंड देन यू हैव टू ओपन योर तिजोरी। सो आपका तिजोरी का वो चेंज नहीं होता ना, लॉक सिक्योरिटी लॉक चेंज नहीं होता। क्या चेंज होता है? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या लगाते हैं हम लोग? की चेंज होता है। सो व्हाट चेंजेस इज द एंटीबॉडी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एंटीजन, ठीक है? So the major function of antibody is to bind, identify। पहली चीज तो इम्यून सिस्टम उसको आइडेंटिफाई करेगी, किसको? एंटीजन को। Now here understand this that antigen can be a protein component of the virus or the bacteria, or it can be a whole bacteria itself, ठीक है? तो आप एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट या एंटीजेनिक पार्टिकल भी बोल सकते हो, या एंटीजन को आप होल बैक्टीरिया भी बोल सकते हो, बिकॉज इट इज अ फॉरेन एजेंट, ठीक है? बट एंटीबॉडी क्या करता है? एंटीबॉडी उसको बाइंड करेगा, एंड एंटीबॉडी डज अ प्रोसेस, डज अ मेथड व्हिच इज कॉल्ड एज, नॉट अ मेथड बट अ फिनोमेना व्हिच इज कॉल्ड एज ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है? सो एंटीबॉडी इज एसोसिएटेड विद एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, thereby leading to something called as opsonization. Now what is opsonization? Opsonization is associated with a process, opsonin, ठीक है? So opsonization का मतलब क्या है? opsonin मतलब बहुत ज्यादा prominent चीजें, है ना, बहुत ज्यादा दिख के आने वाली। let's say for example अगर आप एक ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हो, है ना, तो you will be able to identify इसमें से टैक्सी कौन से हैं, because taxis have a different altogether different color shade. So आप हेलीकॉप्टर व्यू से भी आप ये निकाल सकते हो कि इसमें से टैक्सी कौन से हैं, right? So that is an opsonized condition. मतलब here the taxis are becoming more prominent because of their special type of color code, ठीक है? सिंपल लेमैन्स टर्म में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, ऑप्सोनाइजेशन इज नथिंग बट मेकिंग द एंटीजन लुक टेस्टी फॉर द मैक्रोफाज। अब मैक्रोफाज एक ऐसा सेल है जो फॉरेन सेल्स को या फॉरेन मटेरियल को खाता है, ठीक है? इट अंडरगोस फेगोसाइटोसिस। But how will these macrophages understand that this is a bacteria? I told you there are good bacteria also in your body, right?
So how will your macrophages understand that this is a bacteria and this has to be engulfed, right? So मतलब अगर आप ये मान लो कि बेटा अगर एक बैक्टीरिया को कंसीडर भी किया हमने, तो बैक्टीरिया के ऊपर देयर विल बी सेवरल सरफेस प्रोटीन्स, राइट? बैक्टीरिया के ऊपर भी देयर विल बी ऐसे सरफेस के ऊपर बहुत सारे ढेर सारे प्रोटीन्स होंगे, ठीक है? अब दिस बैक्टीरिया कैन एस्केप द इम्यून सिस्टम, ठीक है? हाउ कैन इट एस्केप द इम्यून सिस्टम? मतलब देयर आर सेवरल मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, एंड इफ इवन वन, जैसे टीबी में होता है, even one of the bacteria remains dormant, तो the organism can relapse, the disease can relapse. TB में ऐसा generally होता है कि अगर आपने DOTS का जो कोर्स है 6 months का, multiple different type of antibodies, antibiotics are given. There is a difference between antibiotics. Antibiotics is a pharmaceutical component or pharmaceutical product used to fight only bacterial diseases. Please understand this, ठीक है? Antibiotics are used against bacteria, ठीक है? An antibody is produced by your own body, ठीक है बेटा? So this particular bacteria can escape the immune system, but अगर इसको और ज्यादा prominent करना है तो मैं इसको कलर करूंगा, है ना? तो ये एंटीजेंस के ऊपर जाकर कौन बाइंड करते हैं? एंटीबॉडी, ठीक है? और सिमिलरली द एंटीबॉडीज हैव द पोटेंशियल टू क्लस्टर या क्लम्प, एक नहीं बहुत सारे एंटीबॉडीज यहां पे ज्वाइन हो सकते हैं, एंड द एंटीबॉडीज हैव, नाउ यू विल अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर केस आल्सो, देयर आर, दिस इज अ मोनोमर व्हिच आई हैव ड्रॉन, देयर आर पेंटामर्स, देयर आर डाइमर्स आल्सो, जो एक से ज्यादा एंटीजन के साथ बाइंड हो सकते हैं एट अ टाइम, ठीक है? तो एट अ टाइम अगर वो एक से ज्यादा एंटीजेंस को बाइंड करेंगे, सो इट इज एसोसिएटेड टू फॉर्म क्लस्टर्स, मतलब टेक्निकली बोलने का मतलब ये है तुम्हारे जो एंटीजेंस है वो क्लस्टर फॉर्म करेंगे, और मैक्रोफेज की एबिलिटी जो है वो थोड़ी सी एनहांस हो जाएगी. मतलब मैक्रोफेज हैज टू लिटरली मैक्रोफेज हैड टू engulf single bacteria, but because of opsonization the efficiency of macrophage is increased. Now it can engulf cluster of bacteria such that your immune system takes up that particular word, ठीक है? So that is opsonization. अब ये क्या हो गया? ये macrophage के लिए और ज्यादा टेस्टी हो गया, right? It has become tasty refers to making it prominent. Ultimately ये इसको ऑमलेट है ना? ये ऑमलेट पे मैंने मस्त ऐसे क्या बोलते हैं इसको, चीज डाल दिया, ये डाल दिए, कोरिएंडर डाल दिया, तो अगेन the omelette looks more appealing, right? It is the same omelette which is made out of 2 eggs, but एक bland omelette है और एक ऐसे decorated garnished omelette है. So what will be your first preference? You will be choosing the second option, right? So similarly is the case with the macrophages. Here antibodies are associated with the process of opsonization. What is opsonization? It is nothing but a phenomena of making the antigen look more prominent. Making the antigen look more prominent for the increased activity of macrophages. समझी क्यों, है ना? तो let's start the types of macrophage. Sorry, my mistake. Let's start up with the types of antibodies. Yeah, types of immunoglobulins. The first type is IgM. ठीक है? IgM आप याद करोगे MACD, IgM. Now IgM जो है it is a pentamer. ठीक है? IgM या immunoglobulin M. It is a pentamer. So pentamer अगर है तो ये ऐसा दिखेगा. ठीक है? Every antigen and sorry my mistake, every antibody will have a short chain and a long chain. ये जो रेड में जो हमने बनाया है that is a short chain, small polypeptide, और ये जो ब्लैक में हमने कंटिन्यूसली बनाया that is a long chain. So when you talk about IgM का जो स्ट्रक्चर है जो आपको दिख रहा है
So IgM is pentameric in structure. ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि सिंस एंड दीज आर दी साइट्स वेयर द एंटीजन, ये जो साइट आपको दिख रहा है, ये जो साइट्स है यहाँ पे तुम्हारे एंटीजन को वो बाइंड कर सकता है। ये आप लोग डिटेल में पढ़ने वाले हो नेक्स्ट ईयर इन अ चैप्टर कॉल्ड एज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, बट नॉट टू टेक एनी पर्टिकुलर चांसेस फॉर योर टॉपिक वाइज टेस्ट, इसलिए मैंने ये अभी यहाँ पे पढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे वो बाइंड करेंगे एट दिस पर्टिकुलर साइट्स, दे विल बाइंड विद द एंटीजन। So this IgM has the potential to bind to more than one antigen at a time, thereby causing increased opsonization, and increased opsonization is associated with greater efficiency or greater impact of your immune system. Cool? So that is your IgM. So primarily आपको ये याद रखना है कि it is only IgM which is pentameric and it is only IgA which is dimeric, बाकी सब monomeric molecules होंगे। ठीक है, परसेंटेज है approximately it is formed approximately 5 to 10% of your total antibody concentration। ठीक है, अब when we talk about the next property, that this antibody is produced in the first response, so it is produced or it is released in greater amount, produced in the primary response। अब क्यों प्राइमरी रिस्पांस, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि प्राइमरी रिस्पांस पे कौन सा एंटीबॉडी ग्रेटर अमाउंट में रिलीज होता है, दैट इज IgM। Now why do I say primary response? Because this is the first time your immune system has been identifying a type of antigen। ठीक है, एक नया ताला आया है, ठीक है, और आपके बॉडी को एक नया चाबी बनाना है। ठीक है, सो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो ऑल टुगेदर नया का नया चाबी बनाओ, लोहा लाओ और लोहा स्टील जो भी मटेरियल का चाबी बनता है वो चीजें लेके आओ, उसको किसके पास, ब्लैक स्मिथ के पास दो और उसकी चाबी का रेप्लिका बना दो, बट दैट इज अ टीडियस प्रोसेस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? सेम इज द कंडीशन विद योर बॉडी। ठीक है, so making a new antibody will take time, that is why primary response is a pretty slower ones। but उससे पहले मैं क्या करूंगा, बॉडी बना तो रही है, अपना काम तो बॉडी कर रही है, मतलब ultimately it has to find a fix key for that, right? so it will take time, but momentarily your body cannot let you die, right? so momentarily what it does is it starts doing permutation combination। मतलब आप क्या करोगे, आपके पास आप ट्राई करते हो ना अपनी तरफ से भी, अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दरवाजा खोलना है। ठीक है, आप फिर ट्राई करोगे कि आपके पास कितने और सिमिलर चाबियां हैं, तो आप सिमिलर चाबियां के लगा कर आप ट्राई करोगे, एंड अल्टीमेटली आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट, मेरे को पता है आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट वन ऑफ द की मैच्ड एंड वन ऑफ द की, आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट वन ऑफ द की मैच्ड एंड आई वाज सक्सेसफुली एबल टू ओपन द लॉक, बट ऐसा हो गया कि लॉक खराब हो गया। समझ में आ रहा है ना? सो बट वहां पे भी एक प्रोसेस चल रही है, नया चाबी बनाने का प्रोसेस चल रही है। सो नेक्स्ट टाइम व्हाट हैपेंस, if your body is encountering the same type of antigen once again, your body already has a memory, and that memory is restored, or this new lock or this new antigen has been identified again, and अब आपके पास रेडी सोर्सेज ऑफ चाबियां है, रेडी सोर्सेज ऑफ एंटीबॉडीज है। अब क्या होगा, सो द टाइम व्हिच यू टुक फॉर ओपनिंग दैट पर्टिकुलर लॉक वाज प्रीटी लार्ज। Now since you know the exact key, now it will be very easier for you to open the lock, is that right? so बोलने का मतलब ये है, it is very similar to just opening a door, it's absolutely similar to that। अब यहाँ पे why is it obtained or why is it majorly produced in the primary response, because इसको जो antigen binding sites है, there are pretty more, right? there are 10, if you can see there are 10 antigen binding sites। ठीक है, so ये ऐसा इट इज जस्ट लाइक अ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये चाबी लगा, फिर ये चाबी से लॉक खुला नहीं तो ये चाबी लगेगा, फिर ये लगेगा, तो ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अल्टीमेटली व्हाट आर दीज आर प्रोटीन्स। ठीक है, ये प्रोटीन और प्रोटीन का ही इंटरैक्शन है बेटा, एक प्रोटीन लॉक है, एक प्रोटीन की है, प्रोटीन और प्रोटीन का ही इंटरैक्शन है। ठीक है, so IgM has greater number of antigen binding sites। I repeat, IgM has more number of antigen binding sites, hence it is obtained hence it is produced in the primary response, because primary response is just
तुक्का मारना, ठीक है। प्राइमरी रिस्पॉन्स इज जस्ट ट्राइंग टू सी हाउ कैन वी, हाउ, जैसे अभी पैंडेमिक में चीजें चल रही है ना, हम हर अलग अलग टाइप के ड्रग्स देकर ट्राई कर रहे हैं, जस्ट डूइंग ट्रायल एंड एरर। सिमिलरली फॉर दैट ट्रायल एंड एरर आल्सो यू रिक्वायर ग्रेटर नंबर ऑफ पैराटॉप्साइट्स। पैराटॉप ये नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, एपिटोप एंड पैराटॉप, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रख लो, पैराटॉप्साइट इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ द एंटीबॉडी। तो इसके पास 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट है, तो 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट है तो कोई तो एक चाबी लग ही जाएगा ऑलमोस्ट। सो दैट इज व्हाई इट इज प्रोड्यूस्ड इन दी प्राइमरी रिस्पॉन्स। दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन आल्सो सी बाकी बहुत सारे मैंने इजी और बहुत सारे मैंने ऐसे क्लियर पॉइंट्स लिखा है, सो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, ठीक है बेटा। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये भी लिखा है मैंने कि 80% ऑफ देम, ये सेकेंडरी रिस्पांस की बात हो रही है। प्राइमरी रिस्पांस में एवरीवन विल बी, मोस्ट ऑफ देम विल बी ऑफ पेंटामेरिक स्ट्रक्चर, बट व्हेन यू टॉक अबाउट द सेकेंडरी रिस्पांस, तो 80% ऑफ देम विल बी मोनोमर and 20% will be pentamer, ठीक है बेटा। So this is one important point which you need to remember, and also you have to remember one point, that is this is the first antibody to be produced in the fetus, ठीक है। ऑन एन एवरेज 20th वीक में ऑन एन एवरेज यही है, 20th वीक के अराउंड बॉडी की जो बच्चा है, बच्चे की इम्यून सिस्टम विल स्टार्ट ट्रिगरिंग एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी M, दैट इज IgM, ठीक है बेटा। सो दैट इज मेजर पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू IgM यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। one more point which I have to understand, I have to make sure that because it is producing, see understand, ये fetus अपना antibody खुद बना रहा है, ठीक है, but mother also confers a certain type of antibody to the child। अभी इसका कॉन्सेप्ट अपन अभी नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। मदर की इम्यून सिस्टम भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, एंड दैट एंटीबॉडी क्रॉसेस द प्लेसेंटा, ठीक है। But only a few antibodies can cross the placenta, not all the antibodies can cross the placenta. You understood what is placenta, ठीक है। मतलब मदर से रेडीमेड एंटीबॉडीज बच्चे को मिल रही है थ्रू द प्लेसेंटा, ठीक है। But since look at this particular structure, this is a large structure, it is a pentameric structure, so because of its large molecular size and structure, it cannot cross the placenta. This is also very important point। मैं आपको ये सारे points में से जो important आपको याद रखना है बहुत ज्यादा, ठीक है, वो अपन मार्क कर लेंगे। This is one important point, very important point। This is also, इसमें 3 वेरी लगा दो, ठीक है, that is very important, and pentameric is one very important। बाकी सब आपने नहीं भी याद किया तो भी चल जाता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, that it can't cross the placenta। It can't cross the placenta। I'm not writing the reason here, we know the reason, because of its large molecular size or structure, ठीक है बेटा। तो आती IgM, પછી next that is IgG। The second one IgG बोला तो मैंने गलती हो गई, IgA पहले ले लेते, बाद में IgG ले लेते, ठीक है। IgA जो है, IgA is a dimer, so it will appear this way। ठीक है। IgA is a dimer molecule। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डाइमर। देखो साइज धीरे धीरे कम हो रही है, पहले पेंटा था, फिर डाइमर था, बाकी सारे मोनो, ठीक है। IgA is a dimer molecule,
ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट IgA जो है स्पेसिफिकली इसके अराउंड अगर आपको पॉइंट्स याद करनी है, ठीक है, तो पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले लिखता हूं, बाद में लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। जो अभी लिख रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने वाले हैं, ठीक है। इट इज अ डाइमर मॉलिक्यूल, तो क्या ये भी प्लेसेंटा क्रॉस करेगा? इट कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा, ओनली द सिंगल वाई शेप्ड मॉलिक्यूल कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, ठीक है। सो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इट कांट क्रॉस द प्लेसेंटा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ रेडीमेड एंटीबॉडी विच इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड बाय द मदर, ठीक है। सो इट इज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम। व्हाट इज कोलेस्ट्रम? इट इज मदर्स फर्स्ट मिल्क। इसलिए हम बोलते हैं ना कि बिकॉज मदर्स फर्स्ट मिल्क जो है, ठीक है, मदर्स फर्स्ट मिल्क जो है दैट इज नॉट टेक्निकली व्हाइट इन कलर, बहुत एग्जैक्टली ऐसे गाय के दूध के जैसे व्हाइट नहीं होता, इट इज अ लिटिल मोर येलोइश इन कलर बिकॉज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन कॉम्पोजिशन, इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स। और कौन से प्रोटीन्स है ये सारे मेजर एंटीबॉडीज है। सो इसीलिए हम बोलते हैं कि बच्चे को फर्स्ट मिल्क शुड बी एनी विच वे इज गिवन बिकॉज mother is conferring or mother is giving the ready-made antibodies which she has produced. So the child gets IgA from the colostrum, ठीक है, child gets IgA from the colostrum. Apart from this is also present in, it is present in milk तो हो गया, saliva, tears and urogenital secretions. Urogenital secretions, ठीक है। Apart from this, one more point of information which we need to remember, ठीक है। प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स इसमें याद रखना नहीं है आपको, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉप्रो एंटीबॉडी, ये पूछ सकते हैं आपको, कॉप्रो एंटीबॉडी। व्हाट इज कॉप्रो? कॉप्रो का मतलब है फीसस, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ एंटीबॉडी का प्रेजेंस वाज आल्सो सीन इन द फीसस, ठीक है, फीटस बोलने वाला था। सिंस इट वाज सीन, इसका प्रेजेंस जो है हमको फीसस में दिखता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉप्रो एंटीबॉडी, ठीक है बेटा। परसेंटेज आपने याद रखना है तो रख लो, नहीं रखा तो भी कोई बात नहीं। परसेंटेज में जो लीस्ट इंपॉर्टेंट वो ब्लू में लिख रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली 15 to 20% ऑफ टोटल एंटीबॉडी जो है, ठीक है, दैट इज इट। नेक्स्ट इज IgG, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। द नेक्स्ट टाइप इज IgG। अब बाकी के जितने भी हैं वो सारे मोनोमर्स है बेटा, ठीक है। थर्ड वन IgG is a monomer, ठीक है। एंड IgG is the most abundant antibody, that is approximately 80%. It is monomeric in structure and it is produced in the secondary response, ठीक है। It is produced in the secondary response. प्राइमरी रिस्पॉन्स में ये है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो रहा है, फिर आपको पता चलता है कि अरे ये वाला जो एंटीबॉडी है, ये वाला एंटीबॉडी मेरे चाबी ताले के अंदर फिक्स हो गया, ठीक है। सो नाउ व्हेन योर बॉडी एनकाउंटर्स द एंटीजन, सेम एंटीजन फॉर द सेकंड टाइम, जब वापस सेम टाइप की इंफेक्शन होती है, तो अब ऑलरेडी आपके इम्यूनिटी में मेमोरी सेल्स है, बी मेमोरी सेल्स, दीस बी मेमोरी सेल्स हैव द इंफॉर्मेशन फॉर दिस एंटीबॉडी, ठीक है। अब क्या होगा, सिर्फ बी मेमोरी सेल्स ये वाला एंटीबॉडी बनाएगा। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, ठीक है। सो सिर्फ अभी ये बनेगा, तो टेक्निकली कौन सा बन रहा है, क्या बन रहा है, IgG बन रहा है, बिकॉज़ इट इज ओनली मोनोमर, बाकी से बनाने की जरूरत ही नहीं है ना, ठीक है। सो एक ही बन रहा है
and the secondary response is much more faster. One reason is because of the memory cells, and the other reason is because of greater amount of production, greater amount of IgG production. So again, this is a very important point from the exam point of view. ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर के साथ मोनोमर है तो इजीली इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा. ठीक है, but there are 4 subtypes which is being seen. There are 4 subtypes, that is IgG1, IgG2, IgG3 and IgG4. ठीक है, there are 4 subtypes except for IgG2. Except for IgG2, IgG2 can't cross the placenta. ठीक है, इसका कोई रीजन स्पेसिफिकली नहीं है, तो कोई ऐसे बुक्स में रीजन दिया नहीं है बेटा, बट दिस इज जस्ट अ फैक्ट. कुछ चीजें फैक्ट के जैसे याद रखनी पड़ती है. ठीक है, सो IgG2 कैनॉट क्रॉस द प्लेसेंटा. बाकी सब जो है अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दैट it can cross the placenta. तो एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये पूछा कि कौन सा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है, तो डायरेक्टली लिख लो IgG. So it can cross the placenta because of its monomeric structure. It is because of its smaller structure comparatively. ठीक है बेटा. So this is with respect to IgG, you need to remember. अब इसके अलावा there is one more, ये छोटे से जगह पे लिख रहा हूं मैं. ठीक है, that is IgG. So my mistake. The fourth one is IgD. अब NCERT में IgD के बारे में इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, because IgD के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन is not very well known. ठीक है. Still, a lot of researchers have been going on to find out the exact purpose of IgD. So technically, immune system में इसका major function नहीं है, तो हम ये मानते हैं कि ये जो IgD है, that marks it is seen on the B cell surface. ठीक है, it is seen on the B cell surface. Not very important. एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं बेटा. ठीक है, all right. Next is fifth and the last point. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है. That is fifth and the last type is IgE. अब ये आपको याद रखना है कि IgE क्या है. IgE is eosinophilia. We have studied what is eosinophilia. Eosinophilia is associated with increased levels of eosinophils in case of allergy. तो बॉडी क्या करती है, एलर्जी के साइंस कम करने के लिए, मतलब एलर्जन जो है उसको डिसॉल्व करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए IgE बनाती है. Now the principle is very simple. ठीक है, प्रिंसिपल क्या है कि any particular antigen, please understand, any particular antigen माने foreign molecule, ठीक है, any particular antigen which is able to trigger a hypersensitive reaction or an allergic reaction. ठीक है, any particular antigen which is able to trigger a allergic reaction, that antigen is called as allergen. ठीक है, so allergen जो है सबके लिए अलग अलग ही होगा. Like for example, a lot of people they have, जैसे मेरे को है, I have this allergy with respect to brinjal. I have this allergy with respect to कभी कभी बहुत कम टाइम में होता है, कभी कभी बॉडी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाती है, कभी कभी कुछ लोगों को एलर्जी होती है स्पेसिफिकली. लाइक फॉर एग्जांपल किसी लोगों को स्मोक की एलर्जी होती है, किसी लोगों को पेट डैंडर की एलर्जी होती है, पेट के बालों की एलर्जी होती है. अपार्ट फ्रॉम दैट पोलन डस्ट की एलर्जी होती है. सो लॉट ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक गैसेस की एलर्जी होती है, मतलब क्लोरीन की एलर्जी अगर होती है, अगर उन्होंने थोड़ा सा भी क्लोरीन इनहेल भी कर लिया, सो बॉडी में पूरे एलर्जिक रिएक्शंस आते हैं. ठीक है, मतलब ये क्यों हो रहा है, अल्टीमेटली ये क्यों हो रहा है. What is eosinophilia causing? Eosinophilia is technically it is technically been happening to decrease the signs of allergy. ठीक है, so allergen जो है सबके लिए अलग अलग ही होगा. Like for example, a lot of people they have, जैसे मेरे को है, I have this allergy with respect to brinjal. I have this allergy with respect to कभी कभी बहुत कम टाइम में होता है, कभी कभी कुछ लोगों को एलर्जी होती है, किसी लोगों को स्मोक की एलर्जी होती है, पेट के बालों की एलर्जी होती है. अपार्ट फ्रॉम दैट पोलन डस्ट की एलर्जी होती है, मतलब क्लोरीन की एलर्जी होती है.
अब देखो बेटा, दो सेल है, हमने बात किया था, एक एलर्जी को कम करता है, एक एलर्जी करवाता है। एक एलर्जी करवाने वाला सेल कौन सा है? बेसोफिल्स, बिकॉज ये रिलीज करेंगे, बेसोफिल्स या मास्ट सेल्स, ये रिलीज करेंगे हिस्टामिन। हिस्टामिन इज अ पोटेंट वासोडायलेटर, जिसकी वजह से आपके सरफेस पे जो कैपिलरीज है, वो सरफेस की कैपिलरीज का ल्यूमेन इंक्रीज हो जाएगा एंड प्लाज्मा विल लीक आउट, thereby leading to inflammation. ठीक है, but that is a different case. It is causing the sign of allergy. But what is the role of IgE then? तो जो भी एलर्जन आपके बॉडी में एंटर कर चुका है, आपके ब्लड में एंटर कर चुका है, that is a foreign molecule and that has to be engulfed, that has to be destroyed. The activity of that allergen has to be destroyed. तो बॉडी क्या करती है? IgE रिलीज करेगी. There will be extremely large amount of IgE which will be released, and these IgE will bind to the allergen, thereby decreasing the effect of the allergen, thereby decreasing the hypersensitivity of the allergen. तो प्रिंसिपल बहुत ही सेम है. डिफरेंस क्या है? यहाँ पे जो एंटीबॉडी हम यूज कर रहे हैं, एंटीजेन यूज कर रहे हैं, वो बैक्टीरिया है या वायरल प्रोटीन है या बैक्टीरियल प्रोटीन है. This particular antibody is specific to allergic proteins या allergen. ठीक है, allergen can be anything, it can be a gas also, it can be any particular molecule. ठीक है, so IgE जो है, IgE प्रोड्यूस करेगा, और IgE क्या करेगा? IgE will go and bind to the allergen molecule and thereby decreasing the sign of allergy. ठीक है, उसके बाद eosinophils आ जाएंगे. eosinophil also has a slight phagocytic activity. ठीक है, eosinophils आ जाएंगे. eosinophils फिर धीरे धीरे allergen. Generally it has been seen in worm infestation. अगर एक इंसान को कोई टाइप की worms है, tapeworm infection है या ascaris का infection है, so in that case also there will be large number of eosinophils produced, because worms के जो proteins होते हैं specifically they are highly allergic, hypersensitive हो जाती है उनमें, hypersensitivity की chances हो जाती है. ठीक है, so ये जो proteins है उसको destroy करने के लिए you need IgE. so very important. इसमें तीन चीजें आपको एग्जाम में जनरली पूछ सकते हैं, वो cannot cross the placenta, cannot cross the placenta, can cross the placenta, but specifically कौन सा placenta में कौन सा क्रॉस करता है? सिर्फ IgG, because IgE तो तभी रिलीज होगा ना जब कोई टाइप की एलर्जी होगी. समझी गए हो? तो IgE and IgD फीटल स्टेजेस में पास नहीं होते, IgG ही पास होता है. ठीक है, दूसरा क्या पॉइंट है? पेंटामर, डाइमर, मोनोमर. उसके बाद क्या पॉइंट है? प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, एंड द IgE is seen in the hypersensitivity reaction. ठीक है, again this is a monomer. It is seen in hypersensitivity reactions. ठीक है, it binds to the allergen. What is an allergen? Allergen is any particular molecule which is able to elicit or which is able to give rise to any type of allergic responses of your body. ठीक है, alright. तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना है. इट इज तो ई से आप इओसिनोफिलिया याद रख लो. इओसिनोफिलिया कभी होगा जब एलर्जी होगी. सो ऐसे आप बाकी सारे एंटीबॉडीज याद रख सकते हो. मैकडी, समझी गए हो? ठीक है, सो क्विकली आई विल इरेज दिस मच एंड वी विल स्टार्ट अप द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ब्लड ग्रुपिंग. Or I think we can make up 2 lectures for now. यहाँ पे अपन एंटीबॉडी खत्म करते हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स. फाइब्रिनोजन का फंक्शन आपने लिखा हुआ है. ठीक है, सो आई विल वाइंड अप दिस लेक्चर हियर इटसेल्फ. ब्लड ग्रुपिंग एक नया टॉपिक है, सो आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दैट. तो अभी मेरे को इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको वो लिखना पड़ेगा इम्यूनोग्लोबुलिन्स. So for now we will end up this lecture. Subsequently you will get the next lecture, and in the next lecture we'll talk about blood grouping. ठीक है,
So that ends for today's class. Thank you so much for your patience. God bless you. Take care of yourself. Bye bye.